Hello everyone, I'm Dr. Pallavi and let's go for the starting of our novel that is Coolie written by Mulkraj Anand. A critical analysis of this novel will make you understand the situations prevailing at the time of the British governance and the cruelty they do on the people of India. So let's get started. So this is about Mulkraj Anand that he was called as the voice for the voiceless as Mulkraj Anand. From 1905 to 2004, he was a pioneering figure in Indian English literature alongside with the R.K. Narayan and Raja Rao. So he was one of the founding fathers of the Indian English novel and he was deeply influenced by the experiences with social injustice, caste system as he was writing, and he was known for the social realism and the feeling of sympathetic, powerful portrayal of the lower castes and the poor in pre-independence India. जब हम देखते हैं कि किस तरीके से मुल्क आनंद ने एक आवाज बनकर जो अनप्रिविलेज लोग थे उनकी आवाज को उठाया, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया और सोसाइटी के सामने उनके साथ हो रही इनजस्टिस को दिखाने की उन्होंने कोशिश करी। जब हम बात करते हैं नॉवल के बारे में, when we see the introduction of the novel, we see the publication facts that was published in 1936 Coolie as one of Anand's most famous impactful novels. So it followed the debut Untouchable 1935 जहां पर उनकी शुरुआत हुई Untouchable से 1935 में, and he cemented the reputation और वहां से उन्होंने आधार बनाया एक reputed powerful social critic के रूप में। तो जो उनकी सोच थी, एक कोर premise था, वो था that novel was a seminal work of social realism. So it chronicles the tragic journey of 14-year-old orphan boy मुन्नू। एक 14 साल के अनाथ बच्चे के बारे में कहानी है मुन्नू की, जब वो उसे खींच लिया गया था आइडिलिक विलेज से, जब वो अपनी सुहानी विलेज से निकलकर कॉलोनियल इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन वाले वजूद में चला गया था। So the prevailing part is something that was very disturbing for मुन्नू। और मोनू यहाँ पर एक प्रोटैगनिस्ट यानी कि स्वयंभू एक जो अपनी कहानी को स्वयं बताता है कि उसके रूप में उसे यहाँ पर दिखाया गया है। सो ही वॉज अ कूली, ही वॉज जस्ट अ कूली एंड इट वॉज हिज डेस्टिनी। दिस इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद, जिन्होंने कूली को लिखा। उन्होंने कहा कि वो एक कूली था और वो कूली है और यही उसकी किस्मत है। So Munnu, an orphan boy from Kangra Hills, is the novel's innocent protagonist and his journey begins with native optimism. वो हमेशा एक उम्मीद की किरण लेकर शुरू चलता है अपनी जिंदगी में कि कहीं ना कहीं उसे एक जस्टिस मिलेगी और वो अच्छे से अपनी चीजों को, अपनी जिंदगी को निभा पाएगा। सो ही इज क्विकली क्रश्ड बाय द सोसाइटी दैट सीज हिम नॉट एज अ पर्सन बट एज अ यूनिट ऑफ लेबर। और सोसाइटी, समाज में जब उसका जो वजूद होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक लेबर के रूप में होता है, लेबरर के रूप में होता है, जिसे हम कूली कहते हैं। और मुनूज जर्नी जो हम पार्ट 1 में देखते हैं, we see the village. Munu's journey begins in Kangra Hills. As I've told you earlier, as an orphan, he is forced to leave the village with his uncle to find work, ending his childhood abruptly. जहां पर उसका बचपन खत्म कर दिया जाता है। बिलासपुर श्यामनगर में वो आता है। He gets his first job over there as a servant in the house of bank sub accountant Babu Nathuram, and here he faces constant humiliation. यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है, अब्यूज, मार पिटाई, हार्श रियलिटीज ऑफ क्लास और समाज में जातिवाद का जो दंश हम झेलते हैं कास्ट डिवाइड्स में, वो चीजें उसको यहाँ पर देखने को महसूस होती हैं। सो इन द पार्ट 2 वी सी कि मुन्नू की जो जर्नी है दैट कम्स फ्रॉम बिलासपुर टू दौलतपुर। अब वो दौलतपुर आ जाता है एंड आफ्टर फ्रीइंग फ्रॉम बिलासपुर ही लैंड्स इन अ प्रिमिटिव पिकल एंड जैम फैक्ट्री। जैम फैक्ट्री के अंदर वो काम करता है। ही एक्सपीरियंसेस वेरी ब्रूटल feudal capitalist exploitation, जहां पर भी the feudal people, the capitalist people, they try to exploit the laborer with giving low wages, कम तनख्वाह में ज्यादा काम करना, lives in squalor, छोटी छोटी अंधी गलियों में उनके घर बने होते हैं, but also finds brief companionship, लेकिन उसे वहां पर दोस्ती भी मिल जाती है। But in Bombay, in Mumbai, when he moves to the metropolitan city, बॉम्बे में जब वो आता है, that is the symbol of modern capitalism, वो और भी ज्यादा खतरनाक कैपिटलिज्म के अंदर फंस जाता है, बिकॉज वहां पर जो आदमियों की अप्रोच होती है, द सोसाइटी, द अप्रोच ऑफ द पीपल, दैट इज वेरी सेल्फ फुली सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने ऊपर वो आत्म केंद्रित होती हैं। सो ही बिकम्स अ कॉटन मिल वर्कर, वहां पर वो कॉटन मिल में काम करता है। लिविंग इन डिजीज स्लम, वहां पर बीमारियों के स्लम एरिया में, जैसा हम देखते हैं स्लम एरियाज बॉम्बे में बहुत ज्यादा है। व्हेन गॉट्स एंड ही गॉट्स
इन द वायलेंट मशीनरी ऑफ लेबर, और वहां पर बहुत ज्यादा दिन रात काम होता है। कम्युनल राइट्स के अंदर भी मुन्नू को वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट 3 वी सी दैट ही विजिट्स टू शिमला। वो शिमला में आ जाता है जब कम्युनल राइट्स में उसका आमना सामना होता है। एंड आफ्टर द स्ट्राइक इन बॉम्बे ही इज हिट बाय अ कार ड्रिवन बाय मिसेस मैनवेरिंग। वहां पर आके उसका एक्सीडेंट होता है और मिसेस मैनवेरिंग, शी इज अ वेल्दी एंग्लो इंडियन वुमेन, जो उसको देखती है और उसको शिमला ले जाती है जस्ट टू बी हर रिक्शा पुलर, कि उसकी वो रिक्शा को खींचेगा और उसका अपना नौकर जो है वो बन जाएगा। बट और यही उसकी फाइनल स्टेज होती है, दैट इज द फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुन्नू। मुन्नू की आखिरी जो चीज है वो मौत होती है, और इस तरीके से रिक्शा खींचना उन बड़ी पहाड़ियों में, दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज हिज हेल्थ, और ही इज रिड्यूस्ड टू अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अब वो एक ऐसे बोझ का मारा बन जाता है जो अपना बोझ उतार नहीं सकता, बिकॉज ही डाइज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब उसे तपेदिक हो जाती है, भूखमरी के कारण जो बीमारी होती है उसे कंजप्शन की वजह से, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से खून की उल्टियां होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। सो दिस काइंड ऑफ situation shows the cruelty of the post-colonial times, where people never saw the small children as humans, but they tried to take exploit these small children into forced labors. So from hills to slums we see the path of descent, कि किस तरीके से उसका जीवन जो है ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है, low standards, and Munu's journey is a geographical and social descent। वहां पर हम देखते हैं कि पतन कैसे होता है, he moves from the open, कहाँ वो खुली पहाड़ियों में, कहाँ वो एक नेचुरल प्राकृतिक संसार में वो रहता है, सिंबलाइजिंग फ्रीडम, जहाँ पर उसे आजादी महसूस होती थी, और वो आ जाता है क्रैम्ड, टूटे हुए, डिजीज, बीमारी से भरे मैकेनिकल वर्ल्ड में जो शहरों में हम देखते हैं। सो हिज फाइनल रिटर्न टू द हिल्स, जब वो वापस पहाड़ियों में जाता है, लेकिन वो एक फ्री बॉय की तरह नहीं होता, बट एज अ ह्यूमन पोनी, लेकिन उसे गधा बना दिया जाता है, पुलिंग अ रिक्शा। सो दैट इज द अल्टीमेट आयरनी। वो एक बहुत दुखद स्थिति होती है। द जर्नी इज वेरी सर्कुलर, जिंदगी शुरू होती है गोल दायरे से, बट ही रिटर्न्स ओनली टू डाई। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो मर जाता है, किनसे? क्रश्ड बाय द सिस्टम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, की लोग उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं। Next is the core theme. We see the social exploitation, the basic theme you need to write in your papers. आपको जब अपनी theme लिखनी है, you will can start writing the introduction as the theme of the novel is social exploitation, and we see 4 kinds of exploitation here. First is feudal exploitation seen in the village by landlord, जमींदार इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं गांव में। मनी लेंडर्स जो सूदखोर होते हैं, हाउस होल्ड बाबू नाथुराम के घर में। Second is capitalist exploitation brutally depicted in the Dholpur pickle factory. फैक्ट्रीज में कम वेजेस पर छोटे बच्चों को रखा जाता है so that they can earn more, और वो खाना भी कम मांगते हैं। एंड द सर जॉर्ज वाइट कॉटन मिल्स इन बॉम्बे, वहां पर हम पूंजीवाद को देखते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में हम देखते हैं एम्बॉडेड बाय द ब्रिटिश फैक्ट्री ओनर्स। यहाँ पर ब्रिटिश फैक्ट्री ओनर्स ने इस पर कब्जा करा। एंग्लो इंडियन मिसेस मेन वेरिंग ने, हु ट्रीट्स मुन्नू एज एन एक्सप्लेट एग्जॉटिक पेट, वो उसको जानवर समझती है और उस पर अत्याचार करती है, बट शी नेवर लव्स द बॉय दैट इज 14 years old। सोशल एक्सप्लॉयटेशन है सामाजिक एक्सप्लॉयटेशन। हम देखते हैं द कांस्टेंट ह्यूमिलेशन, बेइज्जती जो मुन्नू फेस करता है अपर कास्ट हिंदू से, वेल्दी पीपल से, जिसे इनहेरेंटली इंफीरियर जो है माना जाता है, कि जो लो कास्ट होती हैं उनका कहीं स्टैंडर्ड नहीं है और वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। नाउ द कोर थीम इज द कास्ट एंड क्लास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिकॉज कास्ट सिस्टम एक सोशल केज है जहां पर आनंद एक्सपोजेस द रिजिड हायरार्कीज ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो भारतीय जीवन है, भारतीय समाज है, वो कैसे हायरार्कीज यानी कि कास्ट में बटा हुआ है। मुन्नू इज बॉर्न इन अ लो कास्ट, वो एक लो कास्ट में पैदा हुआ है और यही उसकी किस्मत बन जाती है, नौकर बने रहना, लेबरर बने रहना। एंड हिज अटेम्प्ट्स टू फाइंड डिग्निटी, वो अपना सम्मान पाना चाहता है, लेकिन सोशल स्टेटस की वजह से उसे अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पाता है और उसे दबा दिया जाता है। बट इन intertwined systems what we see here is the novel masterfully shows that the traditional Indian caste system and the modern British imposed class system are deeply intertwined। दोनों ही एक तरीके से बने हुए हैं। कैसे इंडियन कास्ट सिस्टम में कास्ट सिस्टम पर जोर दिया जाता है और इसी तरीके से यहाँ पर हिरार्की बनी हुई है, लेकिन ब्रिटिश imposed class system में we see that this is not modern, but that is also a part of
this stupid caste system as we see. So both systems work together, और ये पुअर कास्ट को, लो कास्ट को नीचे दबाए रखने का एक तरीका था, जस्ट इन अ स्टेट ऑफ इनएस्केपेबल सर्विट्यूड. वो हम देखते हैं दैट इनएस्केपेबल सर्विट्यूड सेज दैट कहीं ना कहीं इन एवरी सिस्टम, वेदर इट इज मॉडर्न, वेदर इट इज ट्रेडिशनल, we see the bad part that is humiliating the low caste in every corner, in every situation. So that's for today, and tomorrow we will complete our topic, that is Coolie, written by Mulkraj Anand. If you have any query, please call me, and if you like, please subscribe to my channel, that is Dr. Pallavi Literature. Keep it simple. Hello everyone, let's complete our topic, that is part 2, Coolie, written by Mulkraj Anand. So let's get started. And as we see the man into thing core theme, that is dehumanization. जब हम इसमें देखते हैं कि डिह्यूमनाइजेशन का जो थीम है, इंसान को इंसान ना समझना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज थ्रू आउट द नॉवल वी सी दैट मुन्नू इज रियली ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर मुन्नू को कभी कभार ही इंसान समझा जाता है, एज इफ हिज कूली एनिमल है या वो वस्तु है, एंड हिज आइडेंटिटी इज स्ट्रिप्ड अवे, रिड्यूस्ड ओनली टू द लेबर ही कैन प्रोवाइड, और सिर्फ उसकी जो अंदर की जो आत्मा है वो खींच ली जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ एक नौकर समझा जाता है. His final job as a rickshaw pony is in the novel is most powerful symbol of the dehumanization. जब हम उसे एक ह्यूमन गधा मानते हैं, यानी कि इंसान जब इंसानियत को छोड़ देता है, where a man is forced, जहां पर एक इंसान को जोर जबरदस्ती से नौकर बनाया जाता है, लिटरल बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ का टोकरा वो उठाए घूमता है फॉर द लेजर ऑफ द वेल्दी, क्योंकि अमीर लोग इसे इस तरीके की वस्तु समझते हैं, दूसरे का फायदा उठाना. सो द सेकेंड थिंग कैन बी dehumanization. Uh, in this we see the literary style, that is the social realism. समाज का जो एक कड़वा चेहरा है वो हमें दिखाई देता है, that is a ear glass style, because Anand there shows that he was a pioneer of social realism in India, कि भारत के अंदर जो सामाजिक दर्पण है वो लोगों को दिखाना चाहिए, and he uses a direct तो अनसेंटिमेंटल विविड स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑलमोस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, जहां पर वो लोगों को अवेयर करता है कि जो सोशल इंजस्टिस है वो कितनी बुरी तरीके से चल रही है, एंड ही अवॉइड्स रोमांटिसाइजिंग पॉवर्टी. वो गरीबी को एक प्यार करने की तरीके से नहीं देखता, बट ही फोर्सेस द रीडर टू कन्फर्म द हार्श रियलिटीज, की लोगों को पता होना चाहिए कि समाज में इस तरीके का जो गंदापन है वो कैसे दिखता है, और राइटिंग विद पर्पस. और जब वो अपनी कहानी को लिख रहे हैं तो उन्होंने इसके पीछे एक पर्पस भी रखा है, कारण भी रखा, एंड दैट वाज आनंद्स गोल वाज नॉट जस्ट टू टेल अ स्टोरी. वो सिर्फ एक कहानी नहीं बताते हैं, बट टू एक्सपोज, लेकिन वो एक तरीके से दर्पण दिखाते हैं, इनजस्टिस और सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं, एंड ही वांटेड टू गिव अ वॉइस, और वो एक आवाज बनते हैं मिलियंस ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल की, जो हु हैड बीन साइलेंस्ड बाय सोसाइटी, जिससे समाज के बड़े तबके ने हमेशा दबाया है. तो वो इस तरीके की आवाज को बनकर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं. And the symbolism in the novel is very important, that rickshaw represents the ultimate stage of dehumanization, कि कोई भी रिक्शा जो है वो इंसान कैसे खींच सकता है. Second thing is where man is reduced to the level of an animal, कि इंसान को एक जानवर समझा जाता है जो लोगों का बोझ उठाता है, and the complete subjugation of the poor by the rich, और अमीर लोग किस तरीके से गरीब का फायदा उठाते हैं. Second, symbolizing the city, that is Bombay, Mumbai. It's a symbol of false hope. लोग यहाँ पर गलत उम्मीदें लेकर आते हैं. द मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीन, और एक ऐसी आधुनिक मशीन जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खास तौर पर गरीब तबके को, विद द प्रॉमिस ऑफ वर्क, और ये कहा जाता है कि आपको काम मिलेगा, ओनली टू ट्रैप देम इन स्लम्स एंड क्रश देम, और लोगों को वहां पर आकर बुलाकर स्लम्स एरियाज में ठूस दिया जाता है और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है. थर्ड इज ट्यूबरकुलोसिस, द पुअर मैन्स डिजीज. जब एक इंसान गरीबी में भुखमरी से मरता है, उसे तपेदिक की बीमारी होती है, एंड इट इज नॉट जस्ट अ मेडिकल कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, बट एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है सोशल और इकोनॉमिक ऑपरेशन का, जहां पर आदमी को पैसे से तोड़ा जाता है, पैसे ना देकर उसका फायदा उठाकर सोशल इनजस्टिस करके उसे दबाना उसकी गलत बातों के लिए, और लिटरल रिजल्ट बन जाता है कि छोटे छोटे जो चूहेदानियां होती हैं या छोटे छोटे खोल हैं, इस तरीके के लोग वहां पर रहकर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं.
Next is the critical reception and the legacy. That is the foundational text that Coolie brought the plight of India's exploited masses to an international audience. कूली ने जब 1936 में ईयर ऑफ पब्लिकेशन में जब ये लिखा गया तो इंडिया की जो एक एक्सप्लॉइटेड मासेस है लोगों को वो दुख समझ में आया और इंटरनेशनल ऑडियंस तक उस चीज को पहुंचाया गया एंड इट सीमेंटेड आनंद रेपुटेशन एज अ मेजर वॉइस फॉर द प्रेस्ट और आनंद की आवाज को एक मेजर वॉइस समझा गया उन लोगों के लिए जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते. So this novel is considered as a foundational text in post-colonial literature and remains one of the most powerful social documents ever written about pre-independence India. Next is the discussion questions. The important questions you need to answer and you need to prepare is that the first is trace the geographical and social journey of Munu. That is from starting from Kangra Hills, then to Daulatpur, Bilaspur, and Shimla, and then Bombay. And what does each new location represents in the terms of exploitation? That each new location tried to explore, tried to exploit Munu at every level as a house servant, as a pony, as a human pony, as a rickshaw puller, and as a sweet pet. Next question is how does Mulkraj Anand illustrate the theme of dehumanization through Munnu's different jobs? As I have told you earlier, you have to give a brief description about these odd jobs where he was humanized and where he was misbehaved by other people at every stage. Question number 3 says that is Munnu a purely passive victim? Yes, he was a passive victim and he showed some moments of agency, resistance, but he was beaten brutally by his uh, landlords and other people, and that is why he was a passive victim as seen by the vision and the view by the readers. The question number 4 says that discuss the role of colonialism as a system of exploitation in Coolie. Yes, in the post-colonial India, we see that people were exploited at every level and they were brutally dehumanized by giving lots of stupid works and difficult words at them and with low wages we can see the post-colonial exploitation done by the Britishers and the Indian characters as well because the self-centered theme was the major concept of every work. Next is thank you because we have discussed a lot of questions over here and if you have any query you can call me and if you have liked my channel please do subscribe. That is Dr. Pallavi Literature. Keep it simple. So thank you for today.